कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल। Hello students, how are you all? Welcome to our channel Humanities Pro again, and I'm Mohini Agarwal welcomes you. So now we have already discussing chapter 1 psychology class 12 variations in psychological attributes, and we have discussed till assessment of intelligence. Okay, so now today's topic is variations in intelligence. Now what is variations? Variations means like differences. Okay, so we have already talked the 70 IQ range. Okay, then we have talked about the 100 IQ range and then 130 above. So what we have discussed again, IQ around 100 to 110 is called normal intelligence. Okay, then below 70 we call this type of intelligence is called again intellectual deficiency. In my screen it is written mental retardation, but nowadays the word has been changed by the DSM-5, so the word is again intellectual deficiency. Okay, and above 130 is considered as a gifted or exceptional talented people who have an IQ range of above 130. Like Albert Einstein is I have an IQ of around 130 to 140. Okay, so he was an exceptional talented person, and that we will be discussing here. So again, in this today's topic we will be discussing intellectual deficiency variations. Okay, so mental retardation, again I'm correcting it again and again because this is my old PPT. So again, the word is not mental retardation, the word is intellectual deficiency. Okay, so intellectual deficiency means a person who have a IQ range below 70. Okay, this should be very clear because again this is a one marker question. So again, AAMD. Now what is AAMD? AAMD is American Association on Mental Deficiency. He views now this is the association. Okay, so they views mental retardation, or you can say intellectual deficiency, as a significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period. Now, under this definition, we have 3 pointers, and this is a for sure 2 and 3 marker question, especially a 3 marker question. Okay, what is a intellectual deficiency definition according to AAMD? Okay, so only do not write the definition, because if this question is asking under 3 marker, so you have to write the characteristics and features also. Okay, so the first point is saying that if a person is intellectual deficient, then that person has an intellectual functioning below 70. Okay, so persons having a mental retardation or intellectual deficiency, so the person must show significantly sub-average intellectual functioning, that is IQ below 70. The second point is saying that they also show deficits in adaptive behavior. They find problem again in adapting to their behavior, and again a person might be not capable of being independent. Okay, he might be not able to cope with the environment. So that feature we are talking about this in the second feature, like existing concurrently with deficits in adaptive behavior. And the third point we have is that deficits must be observed during the developmental period, and that developmental period is considered as again 0 to 18 years of age. This is your 1 marker question. Okay, like what is the age range of developmental period? So again, you can be writing 0 to 18 years of age. Okay, so this whole is your AAMD definition, and this is very important question. In fact, this whole range is very important. This whole again topic is very important. Okay, now the next, this is very important again. ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर क्या बताया है, levels of intellectual deficiency. Now what we are talking about in this, that इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में भी आपके कुछ आईक्यू के रेंजेस हैं. ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि 70 के नीचे आईक्यू का अगर रेंज होता है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट पर्सन. ठीक है, सो यहाँ पर भी अगेन बहुत सारे रेंजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड. ना एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखो, ठीक है, किसी की भी आईक्यू 0 नहीं होती है. ठीक है, ये हमने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा भी था, इफ यू ऑल रिमेंबर, कि किसी की भी आईक्यू कैन नॉट बी रेटेड और अगेन मेजर्ड एज 0. ओके, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी आईक्यू 0 होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी. ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो आईक्यू रेंज शुरू होगा वो 70
लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो 55 तक जाएगा. Okay, IQ ranges are very important. These can also be your one marker question, that IQ ranges from 25 to 39 is considered as which type of again retardation. So severe retardation. So again इस तरीके से भी questions आ सकते हैं. Okay, then now देखो mild retardation वाले लोग कैसे होते हैं कि they are not fully again dependent on the people. Okay, so again their development is typically slower than that of their peers. वो अपने peers या अपने age group वाले बच्चों से थोड़े से again slow होते हैं, but again अगर थोड़ा सा भी ध्यान दो तो इसमें हम उनको होल जॉब्स करवा सकते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनवा सकते हैं, ठीक है. बट अगेन यहाँ पर कैसे बनवा सकते हैं, हम बनवाएंगे कैसे, जब हम उनको डेवलपमेंटल पीरियड में उनका डिसऑर्डर या अगेन इस तरीके का इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट हमें समझ में आने लगेगा, ठीक है. अगर ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सिवियर, सिवियर से प्रोफाउंड होता चला जाएगा. तो अगर हम डेवलपमेंटल पीरियड में ही ये चीज देख ले कि यस अ पर्सन माइट बी अंडर 70 IQ रेंज, तो अगेन यहाँ पर थोड़ा बहुत वो अपने आप फंक्शन कर सकता है, उसको डायग्नोज करके क्योर करा जा सकता है. ओके, सो they can function quite independently, hold jobs and families. They will take in understanding abstract concepts का मतलब होता है जैसे जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे बहुत सारी आपकी रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं जहां पर चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो माइट बी दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू दैट. ओके, जैसे अच्छे और बुरे में डिफरेंस इनको समझ शायद थोड़ा देर से है, क्योंकि अच्छा और बुरा एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी आप कह लो, ऐसा होता है, ठीक है. फिर अगेन डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सार्काज्म, उल्टा उल्टा उनको बोलोगे कि तुम तो बुरे हो या अच्छे हो और आप उल्टा उसको मीन कर रहे हो, तो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. दे आर वेरी सिंपल पीपल और सिंप्लिसिटी इन देयर IQ रेंज, ठीक है. उनको ये नहीं समझ में आएगा कि आप उनको ताना मार रहे हो या उनको sarcastically कमेंट कर रहे हो. ओके, सो दैट इज व्हाई दीज टाइप ऑफ पीपल गेट बुलीड मोर. ओके, क्योंकि दीज आर द इजी टारगेट्स, दैट इज व्हाई दे बुलीड मोर. सो माइल्ड रिटार्डेशन या माइल्ड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इज द फर्स्ट पार्ट. Now the second part is moderate intellectual deficiency, that ranges from 54 to 40. Okay, IQ ranges again might be different because again this chapter was edited, so please see the current again a PDF of chapter 4. With that I will be again attaching under this video only. Okay, so now moderate retardation में क्या होता है, they lag behind their peers in language and motor skills. Now this is very important again because this is your one marker question. In which mental retardation again person behind their peers in motor skills. So this is again moderate retardation. Okay, they can be trained in the self care skills, simple social skills and communication skills, मगर फिर भी इनका communication skills उतना profound नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है जितना अगेन mild में होता है. Okay, now they require moderate degree of supervision in everyday tasks. वो अपना काम कर लेते हैं पर उतनी स्पीडी नहीं कर पाते जितना माइल्ड में हो पाता है. ओके, देन डिफिकल्टी इन टाइम लेसेस एक्सप्रेसिंग अबाउट बेसिक नीड्स, ठीक है, उनको नहीं समझ में आता है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए. ओके, सो दिस इज अगेन योर मॉडरेट रिटार्डेशन. नाउ द नेक्स्ट वी हैव सिवियर एंड प्रोफाउंड. देखो सिवियर एंड प्रोफाउंड का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है. दे बोथ अगेन इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग लाइफ एंड नीड एंड कॉन्स्टेंट केयर एंड दे ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है. जिनकी IQ रेंज बिल्कुल आपकी 39-40 के नीचे होती है तो वो ऑलवेज डिपेंडेंट है ऑन अदर्स. एंड अगेन फूड एंड टॉयलेट ट्रेनिंग ये सब भी के लिए वो डिपेंडेंट ही है, ठीक है. सो बेड वेटिंग करना या किसी पे डिपेंडेंट रहना या चल नहीं पाना, मोटर स्किल्स नहीं काम देना, डेक्सटेरिटी नहीं होना, ये सब आपके सीवियर प्रोफाउंड IQ रेंजेस में आ सकता है, ठीक है. सो अगेन दे नीड कांस्टेंट केयर फॉर देयर इंटायर लाइफ इन द सीवियर अगेन रिटार्डेशन. सो प्लीज फोकस ऑन द IQ रेंजेस बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और इसके डिफरेंट लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस वन मार्कर्स आ सकते हैं. एंड अगेन एवरी वन मार्कर क्वेश्चन आई विल बी अटैचिंग like one by one. So just like आपके बोर्ड्स के पहले आई विल ट्राई टू अगेन अपलोड एवरी कंटेंट ऑफ चैप्टर वन एंड व्हाटएवर आई एम टीचिंग. ओके, सो नाउ सी. नाउ द नेक्स्ट अगेन वी हैव अगेन वेरिएशंस पढ़ रहे हैं. तो वेरिएशन में अभी तो हमने बात करी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस. ओके, नाउ इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस का IQ रेंज क्या बताया था मैंने, आई होप यू ऑल रिमेंबर. This is not a live class, so you cannot again answer. But again, IQ range above 130 is considered as intellectual giftedness. ठीक है, ये सारे one marker questions है. In fact, if you will be watching my videos again and again, I will be questioning you again and again. ठीक है, and आप लोग उसको समझ पाएंगे. तो जितना आप इसको सुनेंगे, समझेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, and only refer to the NCERT book. Nothing else is required.
Okay, so the next topic is intellectual giftedness. So Lewis Terman, now ये भी question आता है कि name the psychologist who studied the superior or again talented intellectual giftedness students. So again Lewis Terman is the right answer. So he studied the gifted individuals, began in 1925, followed the lives of about 1500 children with IQs of 130 and above to examine how intelligence was related to occupational success and adjustment. ठीक है, so he wanted to understand कि if a person is intellectually gifted, okay, so that person is might be like getting success in his life or not. So obviously he was well adjusted and again he was a successful person. Okay, so early signs, ये आपका 2 marker questions है. What are the early signs of intellectual superiority shown by the gifted children? Any 4 pointer you can write. The first one is larger attention span. अगर बच्चे में शुरू से ही attention span बहुत अच्छा है, वो बहुत attentively सब कुछ सुनता है, समझता है, जल्दी कैच करता है, तो वो सब larger attention span पे आ जाता है. ठीक है. सेकेंड आपका है good recognition memory. जल्दी भूलता नहीं है बच्चा. ठीक है, उसे चीज याद रहती है, ये है, ये है. ठीक है, तो एवरीथिंग इज वेरी वेरी रिकॉग्नाइज्ड, उसका रिटेंशन अच्छा होता है. ठीक है. थर्ड आपका है प्रेफरेंस फॉर नोवेल्टी. अगर वो कोई चीज बार बार करेगा, एक ही चीज, वो बोर हो जाएगा, तो हिज प्रेफरेंस या हर प्रेफरेंस इज फॉर द डूइंग न्यू थिंग्स. ठीक है, वो नोवेल्टी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है. देन सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंटल चेंजेस. इफ इन्वायरमेंट इज नॉट सूटिंग द पर्सन, ठीक है, टू द चाइल्ड, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो ही विल गिव अगेन रिएक्शंस टू द इन्वायरमेंट इन वट एवर इन्वायरमेंट ही वॉज गिविंग. Okay, so he will try to again, जैसे हमने 3 words पढ़े थे कि he will try to adapt also, he will try to again modify also, he would try to select also. ठीक है, but according to their own capacity. Okay, and the last one is early appearance of language skill. जो भी बच्चे बायलिंग्विस्टिक होते हैं, जिनको 2 लैंग्वेजेस का नॉलेज जल्दी हो जाता है, तो वो भी कंसिडर इंटेलिजेंट बोला जाता है कि वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक है, सो अगेन लैंग्वेज स्किल्स इनमें जल्दी डेवलप होती है. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टेलिंग यू. देखो हमारे इंडिया में कैसा है ना, हमारे इंडिया में अगर बच्चा कोई मार्क्स अच्छा लाता है तो ही वो अच्छा है, तो ऐसा तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा नैरो ही बोला जाएगा. ओके, सो टू इक्वेट गिफ्टेडनेस विद द ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस इज नॉट करेक्ट. तभी आजकल हर साइकोलॉजी बुक में या जहां पर भी इंटेलिजेंस की बात करी जाती है, वो स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि अगेन टू इक्वेट एकेडमिक लाइक टैलेंटेड स्टूडेंट्स विथ इंटेलिजेंस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंस का जो लेवल होता है वो सिर्फ एकेडमिकली इंटेलिजेंट स्टूडेंट से काफी ऊपर होता है. Okay, so athletes show superior psychomotor ability are also gifted. So you should be again capable in your own fields. Okay, each gifted student possesses different characteristics in their respective fields. So that is called again this giftedness, or you can say intellectually giftedness. Now next topic we have is टैलेंट एंड गिफ्टेडनेस. नाउ देखो ये भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्कर का आता है कि अगेन टैलेंट और गिफ्टेडनेस में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो देखो टैलेंट आपका होता है जो, जैसे मैं साइकोलॉजी पढ़ाने में अच्छी हूँ, आई होप आप लोग को भी अच्छी लगती हूँ. ठीक है, सो टैलेंट आपका वो होता है कि व्हेन यू आर टैलेंटेड इन योर एरिया. ठीक है, इन योर फोर्टे, इन योर स्पेसिफिक फील्ड. ओके, सो आपका वो नैरोअर टर्म है, तो आई कैन बी टैलेंटेड बट आई एम नॉट गिफ्टेड. Okay, because my IQ I don't think so is above 130. Okay, though I have never again assessed, but I'm pretty sure that I do not have IQ of 130. Okay, so talent is the narrower term. Okay, whereas giftedness is a exceptional general ability where you can be like superior in all the wide areas. ठीक है, आप चेस खेलते हो अच्छा खेलते हो, आप स्पोर्ट्स में हो अच्छे हो, आप स्टडी कर रहे हो अच्छे हो, आप अपनी सोशल स्किल्स में भी अच्छे हो, तो ये कहने का मतलब आप गिफ्टेड हो. ठीक है, आपका वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज में यू आर शोइंग योर कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल. सो दैट इज अगेन टैलेंट एंड गिफ्टेडनेस का डिफरेंस. ठीक है, वेयरएज टैलेंट अगेन इज अ रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे एस्थेटिक में हो, चाहे साइकोलॉजी में हो, चाहे मैथ्स में. ठीक है, अब ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. द हाईली टैलेंटेड आर समटाइम कॉल्ड प्रोडिजीज. ठीक है, तो ये प्रोडिजी या चाइल्ड प्रोडिजी आजकल एक नया बड़ा कॉन्सेप्ट, ये बड़ा एक ट्रेंडिंग वर्ड है. ठीक है, सो ये आपका होता है व्हेन यू आर वेरी गुड इन योर ओन स्पेसिफिक फील्ड. ठीक है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि आपको प्रोडिजी है अपने उस फील्ड में. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड टैलेंट. Now again C class, this is very important question, the last part of my screen. ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर में ही आता है. ठीक है, that
फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू गिफ्टेडनेस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, ठीक है। और देखिए इसमें बहुत ही कंफ्यूजन अगेन होती है, क्योंकि बड़े सिमिलर वर्ड दे देते हैं। जैसे यहाँ पर आंसर है कि इफ अ पर्सन इज शोइंग हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट एंड हाई एबिलिटी, ठीक है, सो दैट पर्सन इज फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसिडर्ड इन अगेन गिफ्टेड। ओके, इसका केस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ओके, बट अगेन यहाँ पर ऑप्शंस कैसे आएंगे? हाई कमिटमेंट, हाई चैलेंज, तो चैलेंज इज नॉट रिटन हियर, ठीक है। सो प्लीज फोकस। ओके, कि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीजें हैं। फर्स्ट इज एबिलिटी, सेकंड इज अगेन योर क्रिएटिविटी, एंड द थर्ड वन इज कमिटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इफ these three are there in the student, ठीक है, then according to teacher it is a gifted child. Okay, I hope this is clear, this much is clear now. And again this is easy topics, ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट पार्ट हमारे इसी टॉपिक का है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये भी 2 मार्कर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ सकता है। तो अगेन एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, इफ अ पर्सन इज वेरी लॉजिकल इन हिज थिंकिंग, ठीक है, इफ अ पर्सन इज वेरी क्वेश्चनेबल, ठीक है, वो बार बार क्वेश्चन करते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, बच्चा क्वेश्चन करता नहीं है, हम पहले ही बोल देते हैं चुप रहो। चुप नहीं रहो, आप पूछो। इनफैक्ट मैं तो अपनी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो नॉनसेंस क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आई ऑलवेज इंटरटेन दैट। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन पूछोगे, एटलीस्ट आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि आपने नॉनसेंस क्वेश्चन पूछा या आपने एक अच्छा सेंस वाला क्वेश्चन पूछा। ओके, सो एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर ऑल इंडिकेट दैट अ पर्सन इज गिफ्टेड। सिर्फ पैसिव लिसनर्स की तरह सुनना नहीं होता है, दिमाग लगा के उसको समझना भी होता है, ठीक है। देन हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, लाइक सपोज करिए मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस यहाँ बनाना शुरू किया एक एक टॉपिक का। अगर आप इसको समझ रहे हैं, बढ़िया से प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगेन आप गिफ्टेड हो सकते हैं। आप उसको अच्छे से परसीव कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और फिर कॉम्प्रिहेंड भी कर रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा भी रहे हैं, ठीक है। थर्ड इज सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी। ओके, अगर कोई इंसान या कोई भी बच्चा, ठीक है, बहुत जल्दी उसको सिमिलैरिटी समझ में आती है, बहुत जल्दी उसको डिस्क्रिमिनेशन समझ में आता है चीजों के बीच में, तो वो अगेन गिफ्टेड है। जैसे इसका एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी, लाइक अ पर्सन हैज जनरलाइज, जो हम भगवान जी का मुकुट लगाते हैं, टू द हेलमेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम हेलमेट पहनते हैं बट हम मुकुट तो नहीं पहनते। तो उस बच्चे ने यहाँ पर क्या बोला कि भगवान जी मुकुट पहने हुए हैं। सो दैट काइंड ऑफ जनरलाइजेशन यू कैन से कि वो बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, बट उसने जनरलाइज कितनी जल्दी किया, ठीक है। दैट अगेन गॉड इज वेयरिंग हेलमेट बिकॉज गॉड इज वेयरिंग मुकुट। Understood? So these are the facts, these are the generalizations. Okay, advanced level of original and creative thinking, again the more creative, the more unique the person is, the more again gifted person is, that person is. Okay, high level of intrinsic motivation. Now intrinsic motivation का मतलब होता है when you are motivated, ठीक है, from yourself, मीन्स आपको कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं चाहिए टू गेट मोटिवेशन। यू आर, योर सेल्फ स्टीम इज हाई, कॉन्फिडेंट इनफ, एंड यू आर इनफ टू गेट मोटिवेशन। ओके, सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज दैट। ओके, इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो आपकी खुद की सोच है, इंडिपेंडेंट सोच है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। और कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है ओबे करना, इजिली यस यस करना। और अगेन नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है इफ आई डू नॉट लाइक थिंग, आई विल नॉट ओबे टू यू, आई विल नॉट कन्फॉर्म टू यू। Okay, so that kind of gifted again person has a non-conformist approach. They only do not say yes yes to the things, ठीक है, if they find that that the thing is illogical, वो नहीं conform करते। एंड ये होना चाहिए, हमें कन्फॉर्मिस्ट होना चाहिए टू द सोसाइटी नॉर्म्स, बट हमें एकदम ही कन्फॉर्मिस्ट नहीं होना चाहिए कि कोई गलत भी बोला है हम उसको कन्फर्म कर, ठीक है। देन प्रेफरेंस फॉर द सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर द लॉन्ग पीरियड, दीज काइंड ऑफ पर्संस गिफ्टेड चिल्ड्रेन, दे आर वेरी वेरी एकेडमिकली टैलेंटेड एंड दे आर सोल लर्नर्स। उनको ज्यादा कोई नहीं चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो वो सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज लॉन्गर पीरियड्स के लिए ज्यादा दिखाते हैं। सॉलिटरी का मतलब यहाँ पर है अकेले खुद पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अगेन the full. Okay, now the topic is identifying gifted children. Identifying gifted children is again the method, what are the various methods or the other methods, okay, to identifying gifted children. So these are performance on intelligence test, teachers judgment,
school achievement records, parent interviews, peers and self ratings. And these are very very important 2 marker question इस तरीके से आ सकता है कि what are the other methods for identifying gifted children. So these 5 pointers is the right answer. ओके आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया, आप जब पीटीए मीटिंग में जाते हैं तो पेरेंट्स या टीचर्स आपके बारे में क्या कहते हैं, तो उससे भी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप गिफ्टेड है कि नहीं. ठीक है. देन हेल्पिंग देम रीच देयर फुल पोटेंशियल. इफ अ पर्सन इज अगेन गिफ्टेड तो वो नॉर्मल क्लासरूम में बेनिफिटेड तो होगा बट उतना नहीं होगा जितना उसका पोटेंशियल है. तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, बियॉन्ड क्लासरूम्स हम उनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स को अगेन बनाए या उनके लिए अगेन क्रिएट करें. ठीक है. नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, अगेन लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम्स दैट कैन शार्पन चिल्ड्रंस स्किल्स इन प्रोडक्टिव थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो उनमें वो टैलेंट है, उनमें वो एबिलिटी है, तो अगर हम थोड़ा भी उसको इनहांस करेंगे या इनरिच करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी बेनिफिटेड. So this whole is your again this variations in intelligence and this is very very important topic class. Okay, ये आ सकता है, कई बार पूछा भी गया है. So again इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़िए अच्छे से. कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस रिस्पेक्टिव टॉपिक प्लीज कमेंट मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल. आई हैव क्रिएटेड दिस, अगेन माय होल टीम ऑफ टीचर्स हैज क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म टू हेल्प एंड रीच एवरी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, सो दैट कि आपको अगर ट्यूशंस नहीं मिलती हैं या गाइडेंस नहीं मिलती है तो हम आपको हेल्प कर सके. ओके, आवर मोटिव इज वेरी क्लियर. आवर मोटिव इज दैट की ह्यूमैनिटीज का जो एक स्ट्रीम का जो लेवल है, ठीक है, दैट शुड बी इनहांस्ड. ओके, वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज आज भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अगेन थोड़ा सा उसको इंफीरियर डिसिप्लिन मान लिया जाता है, बट इट इज नॉट. इट इज अ वेरी वेरी वाइडर अगेन डिसिप्लिन. सो माई हेल्प इज जस्ट टू अगेन score you all good marks and 100 out of 100 marks. So students, if you like this video, if you like my recorded videos also, please do like, share and subscribe this channel and share with your friends so that we can reach more humanities students. So keep watching Humanities Pro and keep updating. Thank you so much. Bye bye.